अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मैं अन्नाफे के वन ऑफ द फाउंडर्स में से हूँ। आज का जो टॉपिक है द फ्यूचर ऑफ वर्क एंड द रोल ऑफ ऑटोमेशन पे है। और जैसे कि हमारे सारे जो टॉपिक्स होते हैं दे आर कोरली फोकस्ड ऑन दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है और उस काम को आपने सिक्योर कैसे करना है। ठीक है, we it's a very different kind of presentation because we always go back to the core theme. So before we start, let me set some ground rules. ये जो प्रेजेंटेशन है ये अन्नाफे की तरफ से है, जिसका मकसद है दुनिया में तालीम को आम करना, कि तालीम हर किसी के एक्सेस में हो जाए। उसके लिए हमने पूरा तरीक़ाकार बनाया, पूरा सिस्टम बनाया। अगर आपको इसमें कोई सवाल करना है तो आप stream.annafe.com पे जाकर सवाल पूछ सकते हैं। ओके, वहां पर जाइए, रजिस्टर होइए, रूम ज्वाइन करें, whatever language you speak, join that room and you should be able to ask the question there. Okay, our operators will be able to answer them back and I will also be reading from there as well. So Annafe का जो प्रोजेक्ट है वो basically British, Canadian and American citizens ने start किया। Our goal was basically to find address one of the key issues globally, and that is education, right? Education एक ऐसा issue है कि अगर if you tackle that with a level and create a level playing field, then आप बहुत सारे मसले मसाइल हल कर सकते हैं और at least लोगों को equip कर सकते हैं कि वो हल हो सके। So these are the key founders. This is me, one of them, and then we have our CEO, our CFO, our COO, and our founder of Annafe Social Sciences and Economics, Dr. Asad Zaman. Almost all of them, ये सारे के सारे जो हैं वो MIT, Stanford, Princeton, University of Georgia, Brunel, Royal Holloway, London Metropolitan, various other top universities के पढ़े हुए हैं. They have been working within the industry for quite some time, right? आज जो है हम उसके ऊपर बात करेंगे और वो है the role of automation, right? The role of, what is happening in the workplace. कल मैं अपने स्टूडेंट्स को, एक स्टूडेंट था, उसको गूगल के इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा था, राइट? एंड अगेन उसकी जो सेकंड इटरेशन होगी वो कमिंग थर्सडे को दोबारा से होगी। आई हैव COVID-19 राइट नाउ, so not feeling well, so I will be coughing sometime, so please accept my sincere apologies for that. मुझे थोड़ा सा वो भी है, but I will continue inshallah. So our goal is to make sure that not only we talk about the burning issues, but also connect them to how you can secure yourself. So what is, first of all, pre-pandemic and post-pandemic, what is the difference? Pre-pandemic होने से पहले दुनिया में जो डाउनटाउन की जो प्रॉपर्टी थी, that is the most expensive property, right? अगर आप दुनिया में जाएं तो दुनिया में कहीं पर भी आपको जो डाउनटाउन जो कोर होता है, जैसे मैं न्यूयॉर्क में था, when I was in New York, when I was in Ohio, California, Los Angeles, right? Right now in Toronto, you will see every country, every province have their own downtown core, जहाँ पर सारे offices की buildings होती हैं, सब कुछ होता है. And what they do is कि वहाँ पर ज़्यादातर जो financial services हैं, IT services हैं, वो अपने offices खोलते हैं, right? What happened was pre-pandemic, the real estate was very expensive. Everyone was going there. Everyone wanted to have a slice of, something down in downtown, and they were doing that, and people were working. Long story short, we were hit by pandemic and COVID-19 in the late 2019 to early 2020 January. We were hit by this. Almost 2 years have passed, and what happened was, अब क्या हुआ कि एकदम से सब लोगों ने घर से काम करना शुरू कर दिया. And I was reading today that more than 15 million people have died. 15 million people दुनिया में इस वक्त उनका इंतकाल हो चुका है. Almost 1.5 करोड़ उसको कहेंगे, right?
It's a huge number. It's a huge number. Now, this number is understated because India or the दूसरे ममालिक हैं, they haven't given the proper figures. You know, like in South Asian countries, Pakistan, India, Bangladesh, they don't count properly. They don't keep track of things because of corruption and various other reasons. वो नहीं करते, right? So the number is quite high. The number is quite high. I wouldn't be surprised if it's like 30 million, something like that, right? But what they have done is like they did their best estimation to figure out what was happening. And what they found out was that dunya mein, because of the pandemic, many people died. Many people, you know, we lost many relatives in our own family, sab kuch. But that changed everything. That changed the whole landscape. The pura landscape changed kar diya. Universities, schools, colleges remotely shuru ho gaye. Workplace remotely shuru ho gaye. Right? अब लोग घरों से काम करते हैं. This is my office, right? This is my office in Canada, and we have offices like in different countries. But for me, as a CIO, as a founder, I work from home, right? And one of the things that I realized was that how things have changed. So ये सारी जो चीजें हैं, उनमें एक चीज बड़ी subtle है, वो है ऑटोमेशन. ऑटोमेशन दुनिया में जो है वो बहुत सारी जॉब्स को खत्म करेगी. इस वक्त आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, whether you are like in Asia, South Asia, Asia Pacific, North America, South America, wherever you are, you will see that, or in Africa, or in South America, North America, I mean, apart from Antarctica, wherever you go, you will find organizations, आपको companies मिलेंगी. उस organizations के अंदर जो है उनके जो सारे systems हैं, वो सब के सब अब cloud में चलते हैं. Majority, most of them, right? All the critical applications are running in the cloud, and people are working from home. And one of the things कि जिसमें बहुत ज़्यादा boom है, there's a lot of boom happening, is DevOps. Because if anyone talks about automation, DevOps needs to be there. You can't say कि DevOps नहीं है and automation है. नहीं, ऐसा नहीं. Automation means जो आपके tasks हैं, जो आपके repetitive tasks हैं, आप उसको automate कर दें, right? और organization में बहुत सारे repetitive tasks होते हैं. उनको किस तरह से automate किया जा सकता है, उनको क्या terminologies use होती हैं, क्या frameworks use होते हैं. So उससे पहले कि आप ऑटोमेशन पे जाएं, आपको इंडस्ट्रीज का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है. I mean, you need to understand इंडस्ट्रीज में काम कैसे होता है. If you can understand the industries, तो फिर आप उसमें ऑटोमेशन पे काम कर सकते हैं, right? So आज मैं आपको DevOps का एडवांसमेंट ट्रैक दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको पढ़कर, जैसे वो जो स्टूडेंट है जो गूगल में जा रहा है, उसको भी मैं इसका पूरा एक्सेस हम दे रहे हैं. ब्लॉकचेन पढ़ रहा है वो, बट we want to make sure that he is successful as that in that as well, right? So I'm going to talk about those things. So if you go to our website, if you go to anafe.com, you will see our website, career.anafe.com. This is our own domain. You will go to courses, advancement tracks, and you will go to DevOps advancement track. This track is very important. What it does is it covers all the key areas. And let me walk you through all what it is covered. It covers the industry. The first step is the CAT, right? The CAT covers all the key areas, like organizations में कौन सी चीजें किस तरह से काम करती हैं, इंडस्ट्री में काम कैसे होता है. All of these things are covered. And then plus, it also covers more than 500 hours of IELTS training, where we teach you how to speak English, right? LinkedIn, eMath, Ghanima Labs. This is all the hands-on stuff, right? And then data science, SysOps, this is all cloud operation, and then COTS, right? It teaches you all the key things. And then it teaches you second step, which is data structures, web application. And this is where these are the key areas jahan par automation pe kaam ho raha hai. This is where the automation is really working in, right? Data structures, web applications, object-oriented software architecture, all of these key areas. And then the applied DevOps.
what is happening, infrastructure कैसे manage किया जा रहा है, the role of automation, infrastructure as a code, security as a code, all of these key elements. And then it covers the tools through which automation is being performed. These are the key tools, जैसे Python automations. Python is a primary language through which I would say 90% of the cloud, world cloud, or 95% of the world cloud is being managed, right? Jenkins, Ansible, Docker, Kubernetes, Nagios, Git, Terraform, Gradle, ये सारे tools हैं जो automation को expedite कर रहे हैं, complement कर रहे हैं, support कर रहे हैं. So if you know this, you can work on the forefronts. But before you learn this, you have to understand the industries. So if you spend 1 hour a day, 1.5 hours a day going through the CAT, and then slowly and gradually follow up on learning these things, and then the cloud technologies, this is how the world is changing, right? Automation is going to change everything. It is going to break apart everything that you can think of. One of the things you have to understand is, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, समझनी है, सोचनी है. You can raise your hands and I'll be able to answer those questions on Zoom and on stream. So उसको join कीजिएगा. One of the things you have to understand is, is कि दुनिया में because of the COVID-19, things have changed significantly. Organizations are now working from home. Many people are working from home. Organizations, they have to continue. उनको अपना काम continue करना है. और एक चीज जो सबसे ज्यादा इस पे काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम अपने टास्क किस तरह से रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करें, राइट? ऑटोमेशन बहुत सारी जॉब्स को वाइप आउट कर देगा. अगर आप समझते हैं कि आप सेल्स में बैठे हुए हैं, सपोर्ट में हैं, ठीक है, आप फाइनेंस में हैं, मार्केटिंग में हैं, there are 5 things that I tell everyone to study. One is public blockchain, private blockchain. CAT के साथ, there's the second one is career advancement track, DevOps, big data, and AI, right? So these are the 5 things. I always tell them कि study करना है. SecOps उसके साथ ही है. I mean DevOps, SecOps, right? But public blockchain, private blockchain, CAT, DevOps, and big data and AI. So these are the 5-6 things जो आपको करनी ही करनी है. If you really want to, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, whatever you're studying, whatever you're learning, आप बेशक आप जो है किसी भी कंट्री में हो, whatever languages you speak, if you really want to be successful and you want to be in a position that कि आप अपनी कंट्री के अंदर जॉब पकड़ सकें, अपनी कंट्री से बाहर जॉब पकड़ सकें, you really need to learn these things. Because organizations में अब जो काम है सारा, वो सारा का सारा जो है वो on the cloud है, और cloud में काम करना है, DevOps is the key element, because this is where automation is changing the workforce. इस ट्रैक की खास बात ये है कि ये बहुत women friendly है. You know, our mothers, daughters, and our sisters, they can work from home quite easily, because this is very user friendly track. This is very I would say female friendly track, because इस advancement track के अंदर आपके पास वो तमाम skills हैं कि आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं. I mean, this is what you need to learn, right? So सारे के सारे जो skills हैं, cloud services हैं, सब की सब इसमें हमने आपके लिए cover की. Now, let me show you something which is very important. Let me show you that, right? So if I go to Indeed Global, right? Just want to show you, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? And जैसे Argentina, right? What is like this is one of the job portals. Argentina में DevOps में 900 jobs, 900, right? You can see, and you can learn this in your own language, Spanish, right? Because we are offering that. Go to Australia, right? If you go to Australia, you will find similar stuff. You go to Australia and search for jobs, right? DevOps, and you will see 3,730 jobs. Now, this is just one job portal, एक job portal, okay? If you go to Austria, right, you will find, and you type in DevOps, you will see 972 jobs on just one job portal.
Now, most of these jobs जो हैं, you can work from home with your comfort. So if you're a female, or if you're a working father, working mother, and you have kids at home, you can work from home. आप अपने घर से बैठ के काम कर सकते हैं. और ये बहुत सारी jobs ऐसी हैं कि आप कहीं पर भी दुनिया में बैठ के काम कर सकते हैं. Even like if you look into Bahrain, a small country, an island, you will find jobs. Belgium, Brazil. Let's look into all of those things, right? Let's आज थोड़ा सा हम देखते हैं. Let's walk through all of those things. 1,831 jobs in Belgium alone, right? DevOps, 3,458, almost 3,500 jobs in basically Brazil. Now we are teaching in Portuguese. We're teaching this. We are also teaching you in English as well. So ये सब चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं. We are giving you all the key skills and equipping you for all the key things. ठीक है? Canada में देखते हैं. Let's look into Canada. 1,285 jobs. Normally, these jobs, they start with, 140,000 to 160,000. Now, the good thing about this advancement track is कि हम आपको उसके अंदर पूरी वो चीज भी देते हैं. Experience letter भी मिलता है आपको. In all the advancement tracks, we give you the experience letter as well. कि आपका किस में experience है, आप कहाँ काम कर सकते हैं, आपने हमारे साथ क्या काम किया. Because your experience letter will mention that you worked in all the key technologies, all the key things. And that is what organizations are looking for. Because हम आपको पूरा successful बनाने के लिए वो तमाम चीजें provide करते हैं. So you can see Azure, AWS की तमाम services, GCP, IBM, all the key things, all the key tools. He's teaching you all of that. मैंने इसका Kubernetes का पूरा syllabus है, Kubernetes course. We are covering all the key things from zero until you become an expert. We're teaching you all of that and giving you all the key skills and skill sets. And if you study this 1 to 2 hours a day, DevOps, and then CAT 1 to 2 hours a day, in 3 to 6 months' time, you will be in a position to, be able to work in the best of the places. आप अपनी दुनिया में कहीं पर भी best organization, best company में काम करने के काबिल हो सकते हैं, right? So let's go back to again to some of the things. Let's look at Chile, even China, Colombia, all of these countries, like they have, Costa Rica, Czech Republic. Let's look, okay, what is there? Ecuador, even Egypt, okay? Finland. Again, हमारी खास बात क्या है? Our special thing is that we are not only teaching you, but also giving you the skills as well. देखो, this is in Chile, DevOps, 389. Because wherever there is cloud, there is automation, and wherever there is automation, there is DevOps. Okay? This is in China, right? In one of the job portal. Again, this is one job portal. This is and in some country, I can't believe this is in Chile, Colombia, right? So you can see 657 jobs in a country like Colombia. You can imagine Colombia, and look at the salaries. Look at the salaries, right? So this is ये जो job है, this job. This is Rockwell Automation, DevOps engineer, engineer. Like कोई भी industry में तुम जाओगे, तुमने किसी में degree की हुई हो, you can work there, and you can easily be successful, right? This was in another country, right? Again, this one is, आप जाके देखें खाली. Just go there and check. Czech Republic is 1,100 jobs, right? Or this is again another one, and you will find, globally, if you search online and see global jobs, हमारे पास कितनी है, global DevOps, CAGR, compound annual growth rate. If you want to see कि year over year कितना फर्क है, कितनी jobs create हो रही हैं DevOps market में. DevOps market जो है global जो market है, excuse me,
It is growing to almost $26 billion in the next 3 to 4 years. I'm not saying that. Go online, and in the next 3 to 4 years, you will see that it is growing and growing. By 2028, this will grow to 67 billion. You can see, right? So this is huge. This is huge. I mean, organizations में कोई भी industry segment हो, education हो, telecom हो, retail हो, banking, financial services, insurance हो, IT हो, these are the key segments, right? आप दुनिया के किसी भी segment में चले जाएं, you will find DevOps to be there. So this was a short conversation. I'm just going to quickly go and cover some of the other countries. मैं कुछ और countries भी cover कर लूँ, so that no one says कि मैंने उनको नहीं दिखाया. So indeed, USA has some of the biggest jobs because लोग ज़्यादा हैं. And if I search DevOps there, let's see what happens. Or ये jobs you can work remotely from your own country. 17,000, almost 18,000 jobs, right? If you go to Singapore or South Africa or Japan or any of these countries, right? Any of these countries, you will see. This is, I believe, in South Africa, right? Singapore. You can see even in Singapore, 3,000 jobs. जहां पर आपको high-tech economy मिलेगी, you will find DevOps. This is one of the things, and as I say, wherever you are in the world, whatever you do, if you are, अगर आपको ऐसा काम चाहिए कि जो आप आराम से करके काम कर सकें, this is a role for you. This is a role for you. Now, one of the things we have is, if you go to anafe.com, go to our website and go to affiliate. This is one of the programs through which you can sign up. And if you talk to anyone who would like to register for the course, you can easily earn your fee. आप अपनी फीस कमा सकते हैं, अपनी फीस निकाल सकते हैं, and this will help you almost earn 8% of the commission, right? Because our goal is that we are giving you a high quality course. It costs us a lot, but if you cannot afford, there's always an option for you, right? There's always an option for you to learn, earn, and then basically be able to support yourself. So DevOps is one of the key areas, from one of the 5 key areas. As I always say, imagine the career advancement track as the base, and then public blockchain, private blockchain, DevOps, big data, AI, they all are complementary technologies. Big data and data science, I always lump them together because they are together, right? So this gives you enough, ये आपको इतनी knowledge दे देगा कि आप अपने घर से बैठकर काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं. हम वो तमाम जो job description है उसको cover कर रहे हैं, squarely and fairly cover कर रहे हैं, and we are teaching you in multiple languages. So this is one of the courses that मैं हमेशा सबको कहता हूँ, if you really want to be, relevant, अगर relevant रहना है और वो जो नई jobs जो create हो रही हैं उसमें पकड़ना है, see, like this is from the World Economic Forum report. By 2025, 85 million jobs disappear हो जाएंगी और 97 new jobs create हो रही हैं. They're already there. There are millions and millions of jobs in DevOps around the world globally. ठीक है? They are known as software and application developers. These are the next big thing. ये जो 10 areas है ना, they are all basically ये सारे के सारे key tracks हैं, advancement tracks. This is where the work is. और अगर आपने इसको पढ़ लिया, समझ लिया, this will open doors for you locally and internationally. So if you have any questions, and if you want to basically embed this program within your own country, your own schools, colleges, universities, please contact these people. They will be more than happy to respond back. If you want to ask any question, I will always go back to one of the things, which is anafe.com/support. If you go there, you will find आपको यहाँ पर नजर आएगा जितने लोग हैं काम के सब यहाँ बैठे होते हैं. They're all there, and they'll be more than happy to answer your questions. If you have any questions, ये आपके answers दे सकते हैं. They can answer. You can open a ticket
Go to any person that you like to talk to, and they'll be more than happy to answer them back. I'm going to now open the stream feed, and मैं यहाँ से सवालात पढ़ूंगा और आपके सवालात के जवाब यहाँ से दूंगा. Okay, so whatever the case is, I'm going to read it from here. Join, and inshallah, may Allah help you become successful. Jazakallah khair. I will now open the floor for asking questions. इसकी शुरू की जो 15-20 मिनट्स है उसको जो है ना दे देना यूसुफ, ताकि वो इसको मल्टीपल जबानों में डब करके आगे दे दिया जाए. जो लोग यहाँ बैठे हैं वो सवाल पूछ सकते हैं. मुझे कोविड-19 है, तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, बट आई विल ट्राई टू आंसर as much as possible. I'm here for the next 30 minutes. After 30 minutes we will end. ठीक है. So जो यहाँ पर आ रहे हैं, मैं उनके सवाल यहाँ से पढ़ूंगा, पहले उनके सवाल पढ़ूंगा, फिर यहाँ पर आपको जवाब के लिए इजाजत दूंगा. And working as a DevOps engineer, so my question is that in all 24 tracks, will Anafi bring 3D printing track? Abdul Samad, yes, 3D printing track is something that we are looking into, but not right now. This is not something that we can do. हम सब चीजें नहीं कर सकते. Is SecOps included in DevOps track, or there will be separate? SecOps का एक different track है, उसमें different चीजें हैं, different labs हैं, it's completely different. Okay? ये इस दफा जो आपका जो पूरा DevOps का जो ट्रैक है, आप पाकिस्तान में जो इंडिया में बांग्लादेश में जो लोग DevOps पढ़ते हैं ना, वो बहुत लिमिटेड कैपेसिटी में होता है. उनको 2-3-4 चीजें CI/CD पाइपलाइन वाली ये कर ले, वो नहीं. हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, सिक्योरिटी एज अ कोड, तमाम चीजें उसमें करवा रहे हैं. दैट्स मच बिगर. गॉगल जाके देखो, उस पे आपको अंदाजा हो जाएगा. अब्दुल समद कहाँ है? इज अब्दुल समद सिटिंग हियर? अब्दुल समद यहाँ बैठे हुए? Where is Abdul Samad? Can you raise your hand, Abdul Samad? अब्दुल समद कह रहे हैं कि मेरी 2 लाख रुपए तनख्वाह है, more than 2,000, 2 लाख से ऊपर है. Infrastructure as a code and all these things. I just want to learn SecOps and security as a code. And sir, please, can you tell me what are more things in DevOps, DevSecOps? You will teach us at Nafi University. Online degree will be the price of the online. देखो, आपने बड़ा loaded सवाल किया है. यहाँ बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, अब्दुल समद, if you are listening to me. और इसमें जितने भी टूल्स हैं वो उसके प्रोजेक्ट सब चीजें करवाई जा रही है. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड एंड सिक्योरिटी एज अ कोड जो है उसकी पूरी अलग ट्रैक है जिसमें बहुत सारी लैब्स हैं, वो भी सब करवाया जा रहा है. डेव सेकऑप्स के जो लोग हैं इस वक्त दुनिया में, उनकी बड़ी डिमांड है एंड दे आर कमांडिंग सम वेरी गुड सैलरीज. उनकी बड़ी अच्छी सैलरीज हैं, बट अगेन स्टार्ट देयर. और अगर तुम्हें ये सारा काम आता है और तुम ये सब काम करते हो तो देखो, मैं तुम्हारे लिए एक चीज दिखाता हूँ. So देखो, ये अब्दुल समद, if you are watching, ये यूके की जॉब का वो है, ठीक है ना. और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ DevOps, राइट, यूके अगर तुम पढ़ने जाते हो तो 8,000 से ऊपर 9,000 के करीब जॉब्स हैं, ठीक है. जो अगर तुम्हारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तुमने हमारे पास भी सब चीजें पढ़ ली, तुम 50 से 65,000 से 80,000 पाउंड पे जॉब पे तुम जा सकते हो, DevOps इंजीनियर. रिमोट मतलब के जो रिमोट राइडिंग, देखो पर डे के हिसाब से भी कॉन्ट्रैक्टिंग करके भी पैसे कमा सकते हो. देख लो, 450 से 550 पाउंड पर डे के हिसाब से, मगर इसके लिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा. और देखो यहाँ क्या रहा है कि गिट, एंसिबल, जेंकिंस, डॉकर्स, क्यूबरनेटिस, टेराफॉर्म, AWS, IAM, लैम्डा, सब चीजें आपको आनी चाहिए. अब अगर मैं तुम्हें अपनी उसका वो दिखाऊं और कॉगल दिखाऊं, तो उस कॉगल के अंदर देखो जेंकिंस, एंसिबल, डॉकर, क्यूबरनेटिस, नेकविड, टेराफॉर्म, ग्रेडल सब करवा रहे हैं. उसके साथ साथ फिर AWS की सारी चीजें, लैम्डा, ये सब चीजें देखो करवा रहे हैं. तो अगर तुम्हें सब पे काम आता है और तुम वहां जाके स्टूडेंट वीजे पे जाते हो, you can easily secure your job within no time, right? तो अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने पैसे जमा करो, and if you can afford right now, you know, go right now, सितंबर के सेशन में चले जाओ, ठीक है. ये मेरा मशवरा होगा तुम्हारे लिए. DevSecOps का ट्रैक बिल्कुल डिफरेंट है, और जब वो आएगा तो you will know इंशाल्लाह. ओके, बाकी सब लोग प्लीज वहां जाके सवाल लिखें. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम बैक. हारिस नवाज जी, बोलिए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर.
वालेकुम सलाम। सर जी। सर मैं BSIT कर रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट। मैंने फ्रंट एंड तकरीबन कंप्लीट कर लिया है मेरा ना। मैंने आपको देखा तब से मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की तरफ, यानी हैकिंग वगैरह करने का भाई एक इस तरह के मुतबादिल में जाना था। उसमें मैंने आपके दो ट्रैक्स देखे, एक कैट देखा और कॉड्स देखा। मैंने इसमें पता करना था, मशवरा लेना था कि कैट ज्यादा प्रेफरेंस है या फिर कॉड्स जो आपने दिया हुआ है। कॉर्ड्स में सिर्फ थ्योरी है। कैट के अंदर तुम्हारी सारी लैब्स हैं, 250-300 से ऊपर लैब्स हैं, तुम्हें एक्सपीरियंस लेटर मिलता है, हर चीज मिलती है। कॉर्ड्स एक बस एक सिर्फ तुम जाके सिर्फ पढ़ोगे, काम नहीं कर सकते, कुछ भी कुछ कर नहीं सकते। और ठीक है। सर अगर सर मैं अगर सेकंड। तुमने वेब डेवलपमेंट पढ़ी है तो मैं तुम्हें कहूंगा कि डेवऑप्स को करो, या फिर तुम पब्लिक ब्लॉकचेन पे जाओ। उसके अंदर तुम कैट पढ़ रहे होगे, कैट का हिस्सा मेन क्रिटिकल पार्ट है, कैट विल ऑलवेज बी देयर। ठीक है। तुम कैट नहीं पढ़ोगे, ऐसे ही जाओगे तो तुम ख्वार हो जाओगे। ठीक है। ठीक हो। लेकिन तुम कैट पढ़ोगे, उसके अंदर तुम्हें सारी इंडस्ट्रीज का पता चल जाएगा, उसी के अंदर तुम ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, डेवऑप्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बिग डेटा को इम्प्लीमेंट, तमाम चीजें कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें सर पता ही नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। सर अगर क्या कहते हैं लास्ट ईयर यानी BS में अगर आपके यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करवाना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, उसके बारे में बता दें। जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या wherever they are from, वो बैठे हुए हैं, if they study CAT and public blockchain advancement track या basically DevOps का advancement track और आइल्स का अच्छा स्कोर उनका हो जाता है और HEC से अप्रूव या जो भी उनकी लोकल यूनिवर्सिटी जहां पर भी है वो अप्रूव्ड है, तो उनको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और उनको एडमिशन देंगे कि वो आके हमारे पास पढ़ सके। वी विल डू दैट। ठीक है। प्रोसेस वही होगा उसका। यू हैव टू गो थ्रू द यूके नैरिक प्रोसेस है, यूके का नैरिक की डिग्री इवैल्यूएशन होती है, उसके बाद हम आपको बता सकेंगे कि आपने जहाँ से पढ़ा है उसको और कितने क्रेडिट आवर्स आपको मिल सकते हैं, क्या मिल सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन अगर तुम अच्छी तरह पब्लिक ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक या डेवऑप्स का ट्रैक करके आते हो, यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड। अभी जाके पढ़ो ताकि तुम 3-6 महीने में जाके जॉब पे बैठ जाओ, जैसे वो कल देखो ना। इंशाल्लाह। ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू कि तुम जो है ना, मतलब कि टाइम अपना जाया करो। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज वेरी प्रेशियस। सर ओके। और ये मैं आपकी आपकी जो मैनुअल फीस है इसके बारे में, यानी भाई वो बैंक के थ्रू ट्रांसफर करवा दें तो फिर उसके लिए क्या आगे प्रोसीजर होगा, हमें क्या कब एक्टिवेशन मिलेगी आपके वो। सारी की सारी जो आप वहां जाएं, चैट खोलें, चैट पे आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाकर आप अपना, जैसे आप यहाँ पर देखें अनाफे.com पे जब आप जाएंगे, अनाफे.com अगर आप अनाफे.com पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर चैट मिलेगी, आप इसको भिजा सकते हैं। अनाफे.com में एक और चीज है, anafe.com/support। आप इस पे जाएंगे, यू विल फाइंड द पीपल। ठीक है। किनसे क्या बात करनी है, क्या करना है, किसके क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर देयर। गो एंड कॉन्टैक्ट देम, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। यहाँ पर अब्दुल बासित अगर बैठे हुए हैं या मोहसिन बैठे हुए हैं तो वो भी आपकी मदद कर सकते हैं इसके ऊपर कि किसी को कोई पेमेंट करवानी, कुछ भी करवाना है, क्या असिस्टेंस करवानी है, देयर ऑल देयर। ठीक है। मोहसिन अली, हाफिज मोहसिन अली यहाँ बैठा हुआ है, ही कैन हेल्प यू इंशाल्लाह in terms of processing any of those things। ठीक है। थैंक यू सर। जी हारिस, उबैद बोलिए। सलाम वालेकुम फैजल भाई। और सर मेरा सवाल ये है कि अभी जो है मैं डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर। तो वहाँ पे जो आपको पता है कि मतलब ओल्ड स्कूल काम होता है अभी तक और कोई न्यू टूल्स भी इतने नहीं हो रहे। तो जो जो मैंने सीखा था अपने यूनिवर्सिटी में वो मेरी स्किल जो है ऐसे ऐसे फेड हो रही हैं। तो अभी मैंने जो है 1 साल पहले साइबर सिक्योरिटी के मास्टर्स में मैंने एनरोल किया था। तो वहाँ पे मुझे चीज़ें पढ़ा रहे हैं, पर मैंने आपका देखा तो वो वहाँ पे जो है ज़्यादा मुझे डिटेल में कैट के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मतलब साइबर सिक्योरिटी में मुझे जाना है पर साइबर सिक्योरिटी के अंदर किधर जाना है, मतलब मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है। तो अगर आप मुझे वो बता दें। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मतलब सबमरीन जो मतलब बनाते हैं ना हम लोग नेवी के लिए, तो मैं उनके लिए काम करते हैं हम लोग। पाकिस्तान में? नहीं नहीं नहीं, यूएस में। यूएस में तुम कैसे काम कर रहे हो? हाउ आर यू वर्किंग इन यूएस? डू आर यू यूएस सिटीजन? जी जी, सिटीजन सिटीजन। ओके ओके, ठीक है ठीक है।
देखो यूएस के अंदर तो डीओडी का एक पूरा मैंडेट है, इफ यू डोंट नो अबाउट इट। अगर तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारे पास क्लियरेंस, कौन सी क्लियरेंस है तुम्हारे पास? अभी सीक्रेट है। तो अगर तुम्हारे सीक्रेट क्लियरेंस है, तुम तो फिर बड़े आराम से डीओडी के अंदर डिफरेंट जगहों पे काम कर सकते हो, राइट? जी देखो मेरा मशवरा है, अगर तुम्हें काम करना है, डेवऑप्स को सीखो, डेवऑप्स के ट्रैक को पकड़ो, डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक, उसमें साइबर सिक्योरिटी भी है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी भी है, स्काडा भी है, डिजिटल फोरेंसिक्स भी है, डेवऑप्स भी है। इनके पास एक पूरा, इनका पूरा स्टार वॉर्स के नाम से एक पूरा प्रोजेक्ट है जो भी इनको पेंटागन को मिला है। जी इट्स प्रीटी बिग वन, जिसमें ये लोग अपनी तमाम चीजें अजोर की तरफ लेके जा रहे हैं, क्लाउड में, राइट? सही। तो वहां सारा काम डेवऑप्स पे हो रहा है, एंड दे आर पेइंग सम बिग मनी, लाइक 1.5-2 लाख डॉलर सालाना तनख्वाह दे। क्या तनख्वाह है तुम्हारी? अभी तो मतलब अंडर 100 के ही है। हाँ, मुझे वहां तो 3 साल हो गए, मुझे 3 साल हो गए, पर मुझे ये कि काफी स्लो, मतलब ये है कि यहाँ पे काम एक ही रोजाना रिपीट होता है, पर ये कि टूल्स इतने कोई यूज नहीं हो रहे, और बस ये है कि मतलब आपको पता है कि ओल्ड स्कूल चल रहा है। देखो, अगेन एज आई सेड कि अगर तुम्हें काम करना है, तुम्हारे पास क्लियरेंस है, यूज दैट क्लियरेंस टू द मैक्स एंड गो इनटू अदर एरियाज, ठीक है? इसी क्लियरेंस को इस्तेमाल करते हुए तुम प्राइवेट इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा कमा सकोगे, ये एक बात जी बताओ। जी जी जी, बस वही है असल में। यहाँ पे 3 साल हो गए मुझे काम करते हुए, तो वो ये कि काफी सारी चीजें मैंने सीखी थी, वो जो है भूलता जा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस में ही नहीं आ रही। तो इसी वजह से बस आपका वो कैट का प्रोग्राम मैंने भी 3-4 दिन पहले ही मैंने ज्वाइन करा है। हाँ, तो तुम अगर उसको पढ़ते हो, उसको करते हो, तो दैट कैन सर्टेनली हेल्प यू। और इंटर्नशिप का अपना वो बनवाओ उसके अंदर लेटर, ठीक है? एनुअली उसको सब्सक्राइब करते हो तो तुम्हारे पास वो सारी फैसिलिटीज आ जाएंगी, तो जल्दी कंज्यूम करो उसको, अप्लाई करो। अगर तुम प्राइवेट सेक्टर में जाते हो क्लियरेंस के साथ, इस क्लियरेंस के साथ तुम्हें प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसे मिलेंगे, यहाँ तो हाँ तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, वो वही एक जगह अटके हुए हैं अभी, तो ऐसा फील हो रहा है। हाँ, यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में ये अच्छा, डिफेंस के अंदर पेंटागन में जाते हो तो वहाँ पैसे ज्यादा मिलते हैं। अगर तुम ना किसी थिंक टैंक को ज्वाइन कर लेते हो, वहां तुम्हें पैसे मिलते हैं। लेकिन बीइंग के तुम सबमरीन के अंदर काम कर रहे हो, उनके उसके अंदर, तो तुम्हारा स्कोप बड़ा लिमिटेड है। जी तुम्हें निकलने के लिए गनीमा का एक्सपीरियंस वगैरह दिखाना पड़ेगा, जिस तरह बहुत सारे बच्चों ने दिखाया और वो आगे जाके सेटल हो गए ना, ठीक है? जी जी। तो मेरा मशवरा होगा तुम्हारे लिए कि गेट योर सेल्फ आउट ऑफ दिस थिंग एंड सही। गो इनटू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। टेलको सेक्टर में जा सकते हो, टेलको सेक्टर में क्लियरेंस, उनके पास ना यही सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनको क्लियरेंस वाले लोगों की जरूरत होगी, तुम्हारे पास क्लियरेंस होगी। तुम्हारी जो क्लियरेंस है वो तुम्हारे पास एक बड़ा टूल है। और तुम्हारे साथ जब कैट का बैच लग जाता है, डेवऑप्स का बैच लग जाता है, पब्लिक ब्लॉकचेन का बैच लग जाता है, फिर तो तुम मतलब कि कहीं पर भी जा सकते हो। अच्छा, ये जो डीओडी की जो आप बोल रहे हैं क्लियरेंस के साथ ये जॉब्स जो है, मैंने सुना है ज्यादातर जो है ऑन साइट ही बुलाते हैं, तो जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग के तुम किस में क्या करते हो। डीयूडी के अंदर मुख्तलिफ काम है, डीयूडी के अंदर मुख्तलिफ जॉब्स हैं। और डीओडी के अंदर जो है, जो सबसे ज्यादा जो तुमसे मांगते हैं वो लोग, वो मैंडेटरी उन्होंने किया हुआ है इसको, उसे कहते हैं डॉड 8570, उनका एक फ्रेम स्टैंडर्ड है। जी अगर मैं उसको सर्च करूँ, एक मिनट दिखाऊंगा तो ये तुम्हें लाजमी करना पड़ेगा। आई मीन अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें बेसिकली इसको लाके पकड़ना पड़ेगा। अगर तुम तैयारी करते हो ना अपनी, जी। तो उनके पास ना यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस का डायरेक्टिव है 8570.1। सही है। ये डायरेक्टिव कहता है कि भाई तमाम लोग जो हैं, वो जो डीओडी में काम जो है काम कर रहे हैं, तुम वेटरन्स में, तुम नेवी के अंदर हो, नेवी कोर में हो, किस में हो? तो तुम वेटरन्स कहलाओगे, क्या कहलाओगे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो खुद नहीं नेवी में नहीं हूँ। हम लोग जो है मतलब एज अ नेवी के लिए हम काम मतलब सबमरीन डिजाइन करते हैं। सबमरीन डिजाइन करते हैं, अच्छा, तो तुम जी प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करते जी हो। जी जी जी। ठीक है, ठीक है। सो मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए कि तुम जो है ना, इसी प्राइवेट इंडस्ट्री को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से आगे जो है ना डिफरेंट सेक्टर की तरफ जाओ। जी डिफेंस सेक्टर में अगर रहना है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। मुख्तलिफ कंपनीज हैं नहीं, जिसमें मुझे काम, निकलना है डिफेंस डिफेंस से, मुझे असल में निकलना है। मैं मशवरा दूंगा। नाम क्या है तुम्हारा? हारिस, राइट? जी मुसलमान हो? मेरा जी मशवरा होगा जी उससे बाहर निकलो, जी और अपने आप को प्राइवेट सेक्टर में ले जाओ। प्राइवेट सेक्टर में तुम्हारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं।
तुम्हें बहुत अच्छा काम मिलेगा और तुम्हें तनख्वाह जो है $1.5-2 लाख तुम्हारे लिए कमाना कोई मसले की बात है। अगर तुमने डेवऑप्स पढ़ा, जी ठीक, और तुम्हारे पास क्लियरेंस भी है, तो तुम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहोगे, माइक्रोसॉफ्ट में या गूगल में जाके काम कर सकते हो और इन्हीं के लिए काम कर रहे होगे और इन्हीं की माइग्रेशंस कर रहे हो। राइट। तो पैसे भी तुम्हें बहुत अच्छे मिलेंगे अगर तुम्हें उसमें जाना है, ठीक है। जी जी इन्हीं के सिस्टम्स पे काम करोगे तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, मेरा मशवरा ये है। थैंक यू फैसल। एक और क्वेश्चन था मेरा आपकी यूनिवर्सिटी के हवाले से, ये जो आप यूनिवर्सिटी 2023 में खोल रहे हैं, तो ये मतलब खाली यूके के अंदर ही होगी या मतलब ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं? हमारा इरादा है इसको ऑनलाइन बनाने का, एब्सोल्युटली हम अच्छा करेंगे। ये मेरा नंबर है, हारिस रख लो, मैसेज तुम्हारा नंबर सेव कर लूंगा। देखो, हम इसको करेंगे। अभी फिलहाल हमने ऑन साइट खोलनी है, लेकिन रिमोट होगी इंशाल्लाह। इट विल बी रिमोट अवेलेबल, देयर विल बी अच्छा अनाउंसमेंट फॉर एवरीवन टू स्टडी रिमोटली। फी वही रहेगी, फी में कोई चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है। जी। थैंक जी, यू फैसल। इस्लाम, मोहम्मद इस्लाम, एम इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी, सर मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो ये मैंने पूछना था, क्या हम कैट पहले कंप्लीट करें देन डेवऑप्स का ट्रैक करें, या इसको साथ में हम लेके चल सकते हैं? देखो मैं हर किसी को ही कहता हूँ कि जिसकी जो माशी इस्तात है, जो माली इस्तात है, वक्त कितना है उसके पास, उसके हिसाब से वो टाइम लगता है। लोग यहाँ ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ कैट पढ़ के जॉब से बैठ जाते हैं। लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो पब्लिक ब्लॉकचेन पढ़ के बड़ी बड़ी जगहों पे काम पे चले जाते हैं। लोग यहाँ ऐसे भी हैं कि जो डेवऑप्स पढ़ रहे हैं और वो जॉबों पे लग रहे हैं। डेवऑप्स के साथ कैट आता है। तुम्हारे पास टाइम कितना है? अगर तुम्हारे पास 1.5 घंटा है कैट के लिए और 1 घंटा डेवऑप्स के लिए तो बहुत है। डेवऑप्स के अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा पाइथन पे, यानी कि तुम जो ना पाइथन के मास्टर हो जाओगे, क्योंकि सारी की सारी ऑटोमेशन जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो हमने सारा काम करा है, सब पाइथन पे करा है। पाइथन ऑटोमेशन, पाइथन सेलेनियम, क्यूबरनेटिस, डॉकर्स, हर चीज उस पे अंदर इतनी ज्यादा है और इतनी ज्यादा उसकी कोडिंग है। अगर तुम्हें उसके अंदर घुसना है, पैसे बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में लोग इंडिया में 1.5-2 ढाई 3-3 लाख रुपए महीना कमाते हैं। तो तुम अंदाजा करो कि तुम बाहर कितने कमा रहे हो। पाकिस्तान में इतने मिल रहे हैं तो बाहर कितने मिल रहे हैं। डेवऑप्स जी सर। बहुत ज्यादा वो है, मगर रिक्वायर्स कमिटमेंट। तो तुम्हारी कमिटमेंट चाहिए। अगर तुम कमिटेड हो तो फिर तुम इसमें जाओ, अगर तुम कमिटेड नहीं हो माफ कर तो फिर जस्ट स्टिक टू कैट। सर पूछने का पर्पस ये था, क्योंकि कैट जो है वो बेसिक से हमें लेके चलता है ना चीजें, तो मेरा पूछने का पर्पस ये था कि हम कैट कितने मंथ तक पढ़ा हुआ हो देन हम डेवऑप्स को ज्वाइन कर सकें। दोनों या अलग वैसे भी अलग है। कैट तुम्हें इंडस्ट्री सिखा रहा है बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। तमाम इंडस्ट्रीज उसके अंदर से जो है ना फिर तमाम चीजें निकलती हैं। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सॉरी, मुझे थोड़ी सी तबीयत खराब है। मेरे घर में सबको कोविड-19 हो गया। देखो, कैट जो है वो तुम्हें प्रिपेयर करता है तमाम चीजों के लिए, राइट, ठीक है। जी इसके साथ साथ तुम डेवऑप्स पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन डेवऑप्स भी तुम्हें जीरो से शुरू करवाया जाए, यानी कि तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी कोई बेस नहीं है, तुम्हें यहाँ से लेकर पूरे ले जाकर उसके लिए खड़ा किया जा रहा है, ठीक है। तो डेवऑप्स बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगेन, अगर हम तुम्हें क्यूबरनेटिस पढ़ा रहे हैं या डॉकर्स पढ़ा रहे हैं, जीरो से पढ़ाइए तुम्हें कुछ भी नहीं आता। ठीक है। तो हमने इस तरह से एज्यूम किया है कि मैंने सबको जो 3 ट्रेनर्स है जो पढ़ा रहे हैं, 3 ट्रेनर्स, एक ये इतना बड़ा ट्रैक है, इसमें 3 ट्रेनर्स हैं, ठीक है। और तुम 1 घंटे से ज्यादा रोजाना इसको नहीं पढ़ सकोगे। 1.5 घंटा वहां लगाओगे, 1 घंटा इसको लगाओगे, बस। आगे जब तुम 3-4 महीने में, 2-3 महीने में जब तुम कंडीशन हो जाओगे, बोलोगे यार अब मुझे समझ आ गई चीजें, अब मैं तेजी से पढ़ सकता हूँ, फिर तुम उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। फिर तुम देखोगे कि इसकी जॉब्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तमाम कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, टू मेनी। सो तो दिस विल सर विदाउट कैट हम डेवऑप्स को कर सकते हैं, या अगर किसी और ने ये करना हो या मैंने ही डेवऑप्स को डायरेक्ट हम कर लें अगर? देखो, डेवऑप्स को बात वही है ना, अगर तुम्हें डेटा साइंस ऐसी पढ़नी जाओ पढ़ लो, ठीक है। ठीक है। अगर तुम्हें ऐसी पढ़नी जाओ पढ़ लो, डेटा साइंस में तुम मास्टर्स करके घूम रहे होगे तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। डेवऑप्स अगर तुम पढ़ते हो, पहले तुम्हें इंडस्ट्रीज का पता चल गया, कौन कौन सी कहाँ इंडस्ट्रीज है, कैसे क्या है क्या नहीं है, तुम्हें इनकी रिक्वायरमेंट्स का पता चल गया, उनकी साइबर सिक्योरिटी, जीआरसी सब रिक्वायरमेंट्स का पता चल गया, वहीं पर ही डेवऑप्स का इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो तुम्हारे पास एक एडेड एडवांटेज होगा। तुम्हें वो एडवांटेज चाहिए, या तुम्हें बिल्कुल ऐसे बब्बू बन के सामने बैठना है, उसके सामने इंटरव्यू दिया। अगर तुम्हें बब्बू बनना है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है।
अगर तुम्हें शेर बनना है तो फिर डिफरेंट है, राइट? दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें क्या करना है। देयर आर नो कोई शॉर्टकट्स नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। मैं ये चीज कर और लूंगा और करके निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं। ठीक सर, सेकंड क्वेश्चन मेरा था कि अलनाफे कॉलेज के बारे में, कि सर ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई स्टूडेंट आता है, अगर उसने कैट उसका कंप्लीट नहीं है या उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया हुआ, तो क्या उसका अलनाफे कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा या मास्टर्स में होगा, कैसे उसको किया जाएगा? अगर उसने पाकिस्तान में ग्रेजुएशन की हुई है और वो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से है तो उसका वहां पर हो जाएगा, मास्टर्स में होगा। मास्टर्स में हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कैट नहीं, अगर देखो उसने डिग्री की हुई है, बेस्ट बीकॉम किया हुआ है, ठीक है, और या बीए किया हुआ है, तो उसको हम मास्टर्स में एडमिशन नहीं दे सकते। उसको किस तरह बेस पे देंगे? अगर उसने कैट किया ही नहीं, ऐसे ही आ गया उठकर, तो उसका इंटरव्यू, उसका सीवी में कैसे हम कैसे बनाएंगे, कैसे सेटिस्फाई करेंगे यूके नायरेक को कि इसने ये सब चीजें पढ़ी ही नहीं? हमें कुछ पढ़ा ही नहीं तुमने, और तुम वो कह रहे हैं इसने तो आर्ट्स में किया है। तो अगर तुम लोगों को अपनी चीजों को चेंज करना है, यू हैव टू गो थ्रू दैट, ठीक है? तो वो चीज तुम्हें फिर प्रिपेयर कर लेती है। अगर तुमने बेशक बीएससी किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ हो, एमएस किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, ठीक है, इंटर किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, अगर तुम कैट को और पब्लिक ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक को फॉलो करते हो, तो तुम्हारे पास इतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी कि तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ यार ठीक है, मुझे इसमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आई अंडरस्टैंड, कि मुझे अंदाजा हो गया है कि क्या है। और मैं फिर तुम्हारा जब सीवी बनेगा तो उसमें लिखा होगा तुमने 1 साल के यहाँ पर सारा एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है, फिर तुम्हें एडमिशन दे। ऐसा एडमिशन थोड़ी दे देंगे हम, क्या देंगे, वो पीछे मिलेगा नहीं, यूके डायरेक्ट वाले नहीं देंगे। मतलब कि स्टूडेंट्स को लाके बिठाना थोड़ी है, खाली स्टूडेंट्स को काम के लिए काबिल बना के जॉब पे भी लगाना है ना। अगर तुम इसलिए आ रहे हो कि तुम यूके में स्लिप हो जाओ और किसी खान फ्राइड चिकन पे इधर उधर काम करो, तो फिर किसी और कॉलेज। ओके सर, थैंक यू। जी अली बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वो मुझे पूछना था, ऐसे मैं अभी जो हूँ बीबीए कर रहा हूँ, तो बीबीए में इतना कोई स्कोप नहीं है, तो फिर मैंने आपकी वीडियो देखी थी कैट के हवाले से, तो मुझे ये स्विच करना चाह रहा हूँ मैं साइबर सिक्योरिटी में। तो मैं किस किस में जाना चाहूँ, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें। देखो तुम बीबी कहाँ से, बीबीए इकरा यूनिवर्सिटी। कितनी फीस है इकरा यूनिवर्सिटी की सालाना? इकरा सेमेस्टर के हिसाब से 50 to 60,000। और 8 सेमेस्टर है टोटल, जी 8 सेमेस्टर। तो बेसिकली 5-6 लाख की डिग्री पड़ जाएगी, राइट? जी अगर तुम बीबीए कर रहे हो और तुमने कितना पढ़ लिया अभी तक, मेरा बस 1 ईयर का रह गया। तो अभी से कंटिन्यू करो। साथ में तुम जो हो पब्लिक ब्लॉकचेन या डेवऑप्स का ट्रैक उठा लो, एडवांसमेंट ट्रैक, तुम जॉब पे बैठ जाओगे। बीबीए से कुछ नहीं होगा। बीबीए तुम्हारी डिग्री तो हो गई ना, तुमने इतना टाइम लगा दिया, सब कुछ कर लिया, उसको खत्म करो, ठीक है? आखिरी सांसों में वो। और कैट साथ में में एनरोल। देखो, अगर तुम पब्लिक ब्लॉकचेन पढ़ते हो तो तुम जल्दी काम पकड़ सकते हो, डेवऑप्स पढ़ते हो तो तुम मोटी मोटी अच्छी नौकरी पकड़ सकते हो पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? कैट पढ़ोगे तो कैट के अंदर भी तुम्हारी नौकरी हो जाएगी। कैट के अंदर पढ़ने से जो नौकरी है, कैट एक ओवरऑल ट्रैक है, तो उसमें तुम्हें 1 लाख तक, 75,000, 1 लाख तक, 1.5 लाख तक चले आओगे। डेवऑप्स पढ़ते हो तो 2-2.5 लाख से तो उनकी सैलरी स्टार्ट होती है, जो तुम काम सीख चुके होंगे। जो ब्लॉकचेन का ट्रैक पढ़ते हो तो उसमें भी बहुत डिफरेंट है। तो तुम्हारी अपनी मर्जी कि तुम कहाँ कितना अफोर्ड कर सकते हो, क्या पढ़ सकते हो, उसके हिसाब से तुम जाओ काम करो अपना इंशाल्लाह, राइट? तो मेरे लिए ऐसे कैट ज्यादा सही रहेगा या डेवऑप्स वगैरह? अगर मैं डेवऑप्स में देखो, अगेन तुम्हें, तुम्हारा मकसद क्या है? पैसे अगर कमाने हैं, अच्छे पैसे कमाने हैं, ज्यादा पैसे कमाने हैं, ठीक है, कि कल को शादी भी कर सको, सब कुछ कर सको, तो डेवऑप्स तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। कैट देखो, हर चीज के अंदर कैट आएगा। तुम कहीं भी जाओगे, पब्लिक ब्लॉकचेन पढ़ोगे, कैट पढ़ना है। कैट तुम्हें इंडस्ट्रीज के बारे में कंडीशन करेगा। कैट इज लाइक सही। फर्द सला, फर्द पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना? उसका अजर मिलेगा। लेकिन अगर आप उसमें सुन्नत मौक़दा, गैर मौक़दा, नवाफिल सब चीजें पढ़ते हैं, देन इट गोज अप, राइट? सो द मोर यू स्पेंड टाइम, द मोर यू गो अप। सो उसके लिए तुम्हें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर तुम उसमें जल्दी करते हो और जल्दी आगे जा सकते हो, ठीक है ना? एक बंदा है ये जैसे नमाज पढ़ के निकल जाता है,
ठीक है। एक बंदा है जो फर्ज भी पढ़ता है, सुन्नतें भी पढ़ता है और नवाफिल भी पढ़ता है, फिर निकलता है। दोनों में किसको ज्यादा अल्लाह अजर दे? नफिल और सुन्नत जो पढ़ता है साथ में। पूरी नमाज। अच्छा, दूसरी एक ये भी है कि वो खुशू व खुजू के साथ भी पढ़े ना, मतलब कि ये भी है। तो एक बंदा जो फर्द वाला आया वो ऊपर नीचे गया, जल्दी ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, बैक टू द टाउन वाली नमाज पढ़ी, निकल गया। दूसरा बंदा आया, उसने जी खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ी, नमाज में उसने जो है ना कुनूत नाज़िला भी पढ़ी, अल्लाह से दुआ भी मांगी। नमाज में दुआ मांगना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आखिरी जी रकात में आके अल्लाह ताला से दुआ भी मांगी। मैं हर हर फर्द नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ता हूँ, ठीक है, और लंबी दुआ जी मांगता हूँ। दुआ मांगना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसी नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह से बात ही नहीं कर रहे तो फायदा क्या? ठीक है। तो दोनों की नमाज में फर्क हो गया। एक नमाज वो है जी जो कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो, अल्लाह से अल्लाह के नाम लेके दुआ मांग रहे हो। एक नमाज है बस नमाज पढ़ी और फिर निकल गए, क्रिकेट मैच खेलने चले गए, मूवी देखने चले गए। तो दोनों में फर्क है ना। तो अगर तुम डेवऑप्स पढ़ते हो, टाइम लगाते हो, सब कुछ करते हो, बहुत आगे जा सकते हो। ये डिफरेंस है, ठीक है। जी सोहेल अहमद ये बोलिए। डेवऑप्स, बोले बोले अली बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम डेवऑप्स वरहमतुल्लाह। एक मिनट सोहेल, सबर कीजिएगा। जी अली बोलिए। डेवऑप्स अलग है और कैट अलग है, या पहले कैट में एनरोल होना? देखें, आपके लिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। बड़ा सिंपल तरीका है। आप यहाँ वेबसाइट पे जाएंगे anafe.com, यहाँ पर जाएंगे आप कोर्सेस, ट्रैक्स और डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक। डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक पे आप जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, ये पूरा ट्रैक खुल जाएगा आपके लिए। इसके अंदर कैट शामिल है, इसके अंदर कैट शामिल है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, देखो यहाँ पर इसके अंदर ही कैट आपके लिए शामिल है, मतलब कि कैट अलग से नहीं है। मतलब कि कैट अलग से पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन कैट इसके अंदर शामिल है। आपको हमने सारी चीजें इसको मिला के पढ़ा दिया, ठीक है। तो जब तुम ये करते हो और जब पढ़ के जाते हो, तो कैट तुम पढ़ रहे होगे, कैट के लिए तुमने रोजाना 1.5 घंटा निकालना है और डेवऑप्स के लिए 1 घंटा निकालना है। 2.5 घंटे तुमने रोजाना निकालना है। अगर तुमने 3 महीने में निकाल लिए, 3 महीने रोजाना तुम 2.5 से 3 घंटे, 3 घंटे तुम रोजाना लगा रहे हो, ठीक है। महीने के हो गए 90 घंटे, 3 महीने के हो गए 270 घंटे। 270 घंटे तुमने अगर पढ़ लिए, या समझो 300 घंटे तुमने पढ़ लिए, उस 300 घंटे में तुम 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख की जॉब पैसे कमा रहे होगे। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, लिख लो फैसल भाई ने कहा। लेकिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर तुमने पढ़ लिया, अगर तुमने डबल टाइम लगा दिया, तुम जल्दी बैठ जाओगे। जैसे जैसे बच्चे जर्मनी में इधर उधर सब जगह जाके बैठे हैं, तो तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे भाई? ठीक आओ रजिस्टर हो जाए। जज़ाकल्लाह। ये यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सब अमानत है। और कौन कौन है यहाँ पर भाई जो हमारे सेल्स के अंदर है? कौन है यहाँ पर? अपना थंब दिखा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। एक मिनट सब्र कीजिए। हाफिज मोहसिन अली बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। हाफिज मोहसिन अली सबा अमानत भी हैं, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं उधर जाके उसकी वो भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा के बाद सोहेल अहमद आप बोलिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बोलिए बोलिए। फैसल भाई, पहले तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपके घर में जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत दे। आमीन। हाँ अच्छा जी फैसल भाई, मेरे सवाल कुछ इस तरह से है कि मेरी एज जो है वो 40 इयर्स है और मैंने सिंपल बीकॉम किया था और बीकॉम के बाद जो मेरी जॉब थी वो एडमिनिस्ट्रेशन और सप्लाई चेन से ताल्लुक रहा उसका। अब आके मैंने कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक के अंदर जो है तकरीबन 3 महीने पहले एडमिशन लिया। इससे पहले मैंने आईटी का जो सिंपल ट्रैक था उसमें 1 साल तकरीबन पढ़ाई की है, लेकिन वो ऑफ एंड ऑन रहा। लेकिन अभी कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक जो है तकरीबन उसको 3 महीने से स्टार्ट किया हुआ है। तो जानना ये था कि क्या यानी कि जिस एज में मैं हूँ और प्लस ये कि क्या इसके आगे मैं इसको मजीद कंटिन्यू कर सकता हूँ या सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स को बेहतर बना सकता हूँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाउ ओल्ड आर यू? कितने साल के हो? 40 साल, 40 तो इयर्स। 40, हाँ तो 40 इयर्स में तुम क्या, मतलब कि समझे नहीं। 40 साल में तुम शादी हुई तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम दूसरी तीसरी चौथी शादी करो? एक ही काफी है मेरा ख्याल है। नहीं, मतलब जैसे तो सुनना,
दिस इज द सुन्ना ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द सुन्ना इज देयर फॉर अ रीजन ना। मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारी खवातीन घरों में बैठी हुई हैं, बेवाएं हैं, मसले हैं, सब कुछ है, तुम्हारे पास पैसे होंगे तुम शादी करोगे कि नहीं करोगे? मैंने वही अर्ज किया कि मैं भी कुरान की रोशनी में ही जवाब दे रहा हूँ कि अगर आप इंसाफ ना कर सकें तो एक ही पे इक्तफा करें, तो मेरा ख्याल है मैं शायद ना कर पाऊँ। वो एक अलग मसला है कि तुम लोगों को डेफिनेशंस भी पता नहीं होती हैं, बस बोलते हैं हाँ यार मैं इंसाफ नहीं कर सकता, ठीक है, वो एक अलग मसला है, ठीक है। अगर इंसान के पास रिसोर्सेज है, सब कुछ है, वो एब्सोल्युटली शादी करे, ठीक है, एब्सोल्युटली, ठीक है, एंड दैट इज द सुन्नह ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है, रिसोर्सेज होने चाहिए आपके पास, इस्तात होनी चाहिए, और इंसाफ करने का भी वो होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप दीन पे सही चलेंगे तो आप कर सकते हैं। तो जब वो करने के लिए इस्तात है, तो 40 साल क्या उम्र है भाई? 40 साल का मतलब है तुम्हारे पास 35 साल है अभी रिटायरमेंट में, 35 ईयर्स, 30 जी टू जी 35 ईयर्स है तुम्हारे रिटायरमेंट में। तुम मुझसे कह रहे हो कि क्या मैं ये पढ़ सकूंगा? अजीब सा सवाल किया तुमने, ठीक है। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया कि क्या इसके बाद मैं अपनी फील्ड को स्विच कर सकूं। मैंने आपसे यही अर्ज किया कि मैंने फील्ड जो थी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन थी और प्लस सप्लाई चेन थी, तो अब मैं उसको स्विच भी करूंगा। देखो, जाहिर बात है जब मैं पढ़ूंगा अगर तो सब यकीनन उसको देखो, स्विच भी करने जाऊंगा। इसका मैंने बहुत दफा जवाब दिया है, अगेन आई विल मेंशन, ये जितनी जी चीजें हैं ना, सप्लाई चेन हो गया, ये जितनी भी फील्ड्स हैं, इन सब के अंदर पब्लिक ब्लॉकचेन अंदर जाके फिट होता है, ठीक है। जी जी अगर तुम पब्लिक ब्लॉकचेन पढ़ रहे हो, ब्लॉकचेन पढ़ रहे हो, तुम्हारी पीछे से शोर हो रहा है, म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम वो सब चीजें पढ़ते हो, तो तुम एब्सोल्युटली तुम उसको इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी तमाम चीजों के अंदर, और इंटीग्रेट का मतलब है कि तुम जाके उसमें काम भी कर सकते हो, उसमें जाके वो भी कर सकते हो। देखो, मैं तुम्हें यहाँ से एक चीज दिखाता हूँ, ये है पब्लिक ब्लॉकचेन का की इंडस्ट्रीज जहां पर ब्लॉकचेन यूज हो रही है। अगर तुम देखोगे ना, ब्लॉकचेन सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो सप्लाई चेन में यूज होती है, बहुत ज्यादा, ह्यूज। देखिए सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि इवन कि अगर मैं इसको वहां पर खोलूं उसको, ठीक है, और AWS के ऊपर जाऊं, तो इवन कि AWS वालों ने भी इसमें लिखा हुआ है कि यार सबसे ज्यादा काम जो है ना हम लोग ब्लॉकचेन में जो कर रहे हैं वो सप्लाई चेन के अंदर कर रहे हैं। तो अगर तुमने सप्लाई चेन में किया हुआ है और तुम इसमें काम करते हो, और तुम्हें वेब एप्लीकेशंस वगैरह बनाने आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, काम आ जाता है, और ब्लॉकचेन में तुम्हें काम आ जाता है, तुम एब्सोल्युटली तुम सप्लाई चेन में कर सकते हो काम। सप्लाई चेन में कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस तो कभी रिजॉल्व नहीं होंगे जब तक करप्शन है, दूसरे मसले हैं, वो चीज रहेगी। तो अगर तुम इसके अंदर एप्लीकेशन बना के, तुम्हें इन पूरे प्रोसेस का पता है, राइट सोहेल अहमद, तुम्हें पता है कि सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, रेगुलेटर, लॉजिस्टिक्स, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, इसकी पूरी चीज तुम्हें पढ़ा पढ़ा के तुम्हें बिठा दिया जहन में, राइट। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हें ये भी सब बता दिया कि भाई सप्लाई चेन की इंटेग्रिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, दूसरी चीजों का मामला है, एथिकल सोर्सिंग क्या होती है, तुम्हें हर चीज पता है। अब जी जी वो सारे चैलेंजेस हैं, जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में, पाकिस्तान में 2 बिलियन की काउंटरफिट मेडिसिन हर साल बनती है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, और इंडिया में वो 20 बिलियन की बनाते हैं, इतनी ज्यादा है। पाकिस्तान तो छोटा है ना पाकिस्तान, इंडिया तो बहुत बड़ा है, और ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि हमारी तो पूरी पॉपुलेशन इंडिया के 20% के बराबर होगी, 25% के बराबर होगी, राइट। तो कहने का मकसद ये है, सप्लाई चेन इज ए ह्यूज इश्यू इन फार्मास्यूटिकल। तो वहां पर ये, लेकिन इसका काम पाकिस्तान से बाहर होता है, पाकिस्तान में मुश्किल है अभी, maturity इतनी नहीं, ठीक है, जी तो सिक्योरिटी का टाइम लगेगा। बट द पॉइंट इज कि तुम इसको पढ़ के बिल्कुल इसमें जा सकते हो, तुम पब्लिक ब्लॉकचेन पढ़ो, उसको सब चीजें सीखो, उस पर काम करो, बोलो यार मैं सप्लाई चेन के अंदर ब्लॉकचेन में अप्लाई करना चाहता हूँ बाहर, मगर उसका काम तुम्हें बाहर मिलेगा, पाकिस्तान में तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें पाकिस्तान से बाहर जाना है, फिर वहां पर बात शुरू होगी कि तुम जाना कहाँ चाहते हो, ये अच्छा चीज। फैसल भाई, मैं असल में अभी तो कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक कर रहा हूँ, तो इसी के को रहते हुए स्विच करूँ या अलग से उसको ब्लॉकचेन में लूँ, क्या किस तरह से करना चाहिए मुझे, किस तरह क्या सजेस्ट करेंगे आप? इसको लेने के लिए तुम्हें सिर्फ एड ऑन लेना, अगर तुम ऑलरेडी कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ रहे हो, तो जो लोग कैरियर जी एडवांसमेंट ट्रैक ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ एड ऑन लेना पड़ेगा, एड ऑन। वो यहाँ वेबसाइट पे जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पर, और कोर्सेज में जाएंगे, ठीक है, एडवांसमेंट ट्रैक्स में जाएंगे, और यहाँ पर वो एड ऑन लेंगे, सिर्फ एड ऑन, एड ऑन तुम्हारे पे, एड ऑन फॉर कैट एंड वेट स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उनको सिर्फ एड ऑन लेना,
दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स टू इट। ठीक है, तुम्हें चीजें मिल जाएंगी, तो पढ़ सकते हो। लेकिन एज आई सेड, इसकी जॉब्स तुम्हें बाहर मिलेंगी, मतलब कि ना वहां नहीं मिलेंगी तुम्हें। जी, मैं पाकिस्तान खुद भी स्विच करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, इमिग्रेशन लेना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह उसके लिए प्रोसेस के लिए अप्लाई करूंगा इंशाल्लाह तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद। मतलब कि तुम्हें बाहरी इसका सारा काम है, इसका वहां पर नहीं है। सो टू से जी जी, कि मैं बिल्कुल ऐसे ही है। तुम्हें इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो बहुत ज्यादा पीछे है। इंडिया बहुत आगे निकल गया। इंडिया ने ब्लॉकचेन के ऊपर से तकरीबन 50 to 60 बिलियन डॉलर्स कमाना शुरू कर दिए हैं अपनी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजीज को अपनी इकोनॉमी में एम्बेड कर दिया उसने। ठीक है, काफी इम्प्रूव कर चुके हैं वो आईटी के हवाले से तो। बहुत दे आर वेरी वेरी फार अहेड। हम लोग जो है ना, हम लोग खेल तमाशे और गाने वाने करते रहते हैं। वो भी खेल तमाशे करते हैं, लेकिन वो काम ज्यादा करते हैं। हम सिर्फ खेल तमाशे करते हैं। मसला डिफरेंस ये है दोनों में। ठीक है, ये है। अच्छा, स्पेसिफिक सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछनी थी, वो ये कि मेरी जो डिग्री है वो बीकॉम है, सिंपल बीकॉम। तो क्या मुझे डिग्री भी करनी चाहिए इसके साथ? क्या क्या सजेस्ट करते हैं? उसकी जरूरत नहीं है? बाहर निकलने के लिए तुम्हें डिग्री की जरूरत पड़ेगी, एडमिशन लेके तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर तुम पब्लिक ठीक है, ब्लॉकचेन पढ़ते हो, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तुम तुम्हारे मास्टर्स में एडमिशन हो जाएगा, मैं तुम्हें ये कहूंगा, और तुम करने के बाद फिर जॉब पे बैठ जाओगे। मैंने सिर्फ यूके में जल्दी से सर्च किया कि सप्लाई चेन ब्लॉकचेन लिखा मैंने, ठीक है ना, सप्लाई चेन और ब्लॉकचेन, तो मेरे पास ना एक जी जॉब के ऊपर 53 के करीब जॉब्स नजर आए मुझे। मतलब कि मैं सिर्फ जाके देखा, तो वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास सप्लाई चेन पड़ी भी हो और उनको ब्लॉकचेन पे काम भी आता हो। दैट्स यू। ठीक है, तो जी अगर जी। तुम्हें काम करना है उसमें, तुम काम कर सकते हो। सैलरी एस्टिमेट शुरू हो रहा है 40,000 पाउंड से। तो अगर तुम्हारे पास पाकिस्तान में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, काम किया हुआ है तुमने, यहाँ का तुम्हारा एक्सपीरियंस बन गया, 50 to 55,000 जी पाउंड आ सकते हो। दैट्स योर मिनिमम सैलरी। लेकिन अगेन, जी। पाकिस्तान से बाहर है सारा काम। इट्स नॉट इन पाकिस्तान। जी, मोहम्मद हमजा बोलिए। तो डिग्री फिर मुझे कौन सी करनी चाहिए? डिग्री के लिए तुम्हें मास्टर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा। हमारे पास लेना है, किसी और जगह लेना है, तुम्हारी अपनी मर्जी है। ठीक है, इट्स अप टू यू। डिपेंडिंग कि तुम्हारा एक्सपीरियंस जो है उसके हिसाब से तुम ब्लॉकचेन में ले लो। ब्लॉकचेन में तुम्हें मास्टर्स करने के चले जाओ, सोहेल अहमद, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। और ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ो, कैट पढ़ो, बताओ उसमें सब ये तुमने काम किया, सब कुछ किया। अभी कहीं काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जी जी, मैं काम कर रहा हूँ किसी पे। तो फिर मेरा मशवरा ये होगा कि उसको उसको इन्फ्यूज करते हुए एमएससी इन ब्लॉकचेन इंशाल्लाह, और तुमने ये सारा जी पढ़ा इंशाल्लाह। होगा, तुम ऐसी सारी चीजें पास करके निकल जाओगे। दैट्स नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम इंशाल्लाह। ठीक है, जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम मोहम्मद हमजा कुरैशी है। सर मैं सर आपसे गाइडलाइन लेनी थी कि सर मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। मेरी सिस्टर वहाँ पे होती है कनाडा में, वहाँ के इमिग्रेंट है, मेरे बहनोई और मेरी सिस्टर। तो सर मैं साइबर सिक्योरिटी की बेसिक यूट्यूब से और गूगल से पढ़ी है, और मैं आगे इसमें कोर्स करके आपके इंस्टीट्यूट से और फर्दर कनाडा मूव करना चाहता हूँ, ताकि वहाँ पे कोई जॉब जो है वहाँ पे फाइंड कर सकूँ और वहाँ पे अर्निंग कर सकूँ। तो देखो सर आप भाई, मुझे पाकिस्तान से तुमने क्या किया? आई मीन व्हाट हैव यू डन? हाँ, मैंने पाकिस्तान से BS कंप्यूटर साइंस किया है, और मेरा 6 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। मैं अभी जॉबलेस हुआ, 5-6 महीने हुए हैं मुझे जॉबलेस। तो मैंने आप लोगों के बारे में सुना और आपके इंस्टीट्यूट को भी स्टडी किया, और अब मैं इरादा रखता हूँ कि मैं यहाँ से मेरा मशवरा है, अगर तुम्हें यहाँ पर आना है, आसान रास्ता तुम्हारे लिए ये कि तुम जाओ डेवऑप्स को पढ़ो, पब्लिक ब्लॉकचेन पढ़ो, एडवांसमेंट ट्रैक जो से भी तुम्हें चाहिए, और साथ साथ तुम जो ना यहाँ यहाँ पर एडमिशन लो मास्टर्स के लिए। ठीक है, मास्टर्स में आओगे, और अगर तुमने ये सब चीजें पढ़ी हुई, तुम आओगे स्टूडेंट वीजा पे जॉब कर रहे हो। ठीक है, ये अगर तुम्हें बात समझ आ जाए तो तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। तुम देख लो, अगले साल फरवरी के सेशन के लिए अप्लाई करना। फरवरी में सेशन यहाँ खुलेंगे, जाओ, अपनी अपनी तैयारी करो, अपना बैठ के पढ़ो,
और तुम्हारे लिए रास्ता खुला हुआ है, लेकिन वो रास्ता मेहनत का रास्ता है। तुम्हारे पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तुम्हारे पास ये 8 मंथ्स है। 8 मंथ्स में तुमने अच्छी तरह तैयारी करनी है। डेवऑप्स का एडवांसमेंट ट्रैक या पब्लिक ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक, जो भी तुम शुरू करते हो उसको खत्म करो, उसको लेके जाओ। और उसके बाद जो है ना, साथ साथ तुम अपना प्रोसेस जो है ना, स्टूडेंट वीजा का अप्लाई करने की तैयारी करो। अगर तुम्हारा वहां हो जाता है, स्टूडेंट वीजा पे जल्दी आओगे, जल्दी वीजा लग जाएगा आकर यहाँ पर। फिर उसके बाद तुम बहन के साथ रह लेना, कोई मसला नहीं है। जो भी तुम्हें काम करना है तुम कर सकोगे। एक दफा यहाँ उतरना आसान है, इमिग्रेशन पे टाइम लगेगा तुम्हें आने में, स्टूडेंट वीजा में आने में आसानी होगी तुमको। जी शुदा अहमद, मेरा आखिरी सवाल जो होगा ना, बस मोहम्मद रशीद से होगा। दैट्स इट, आई हैव टू देन वॉक अवे। जी शुजा अहमद बोलिए। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम जी। जी फैसल भाई, मुझे ये पूछना था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जॉब तो कर रहा हूँ यहाँ सऊदी में एज अ साइबर सिक्योरिटी, क्या कहते हैं, अपना मैनेजर। और यानी एक 3-4 साल से साइबर सिक्योरिटी में हूँ, उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड वगैरह पे थे। तो मैं ये पूछना था फैसल भाई कि आपने मुझे मशवरा दिया था इससे पहले कि आप मैं यूके वगैरह के लिए ट्राई करूं, और तो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि मेरे पास मास्टर्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूके अगर मैं जाऊं तो वहाँ पर यानी किस में मास्टर्स में पढ़ाई करूं, और क्या अगर मैं कैट में लूंगा आपके पास तो आपके पास मैं स्लाइड हो सकता हूं कल के दिन, आपकी यूनिवर्सिटी वहाँ पर ओपन होती है? बिल्कुल ले सकते हो, मतलब कि दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तुम ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हो, तो मेरा मशवरा होगा डेवऑप्स में चले जाओ, डेवसेकऑप्स को परसू करो। जी जी पब्लिक ब्लॉकचेन में जाओ। जी कैट के अंदर तुम्हें बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, क्लाउड है, स्केडा है, आईसीएस है, जी साइबर सिक्योरिटी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी। इसमें तुमने कुछ डोमेन्स में काम किया, कुछ में तुमने काम नहीं किया हुआ, तो वो तो तुम्हें जी वैसे ही मिल जाएगा पब्लिक ब्लॉकचेन पढ़ने से, एडवांसमेंट ट्रैक या डेवऑप्स से। अगर तुम डेवऑप्स पढ़ते हो, करते हो, उसको समझते हो, तो अगर तुम्हें जाना है तो ब्लॉकचेन में डिग्री करो, तो यू कैन इजीली सिक्योर योरसेल्फ। डेवऑप्स के ठीक अंदर है। डिग्री करो, यू कैन इजीली सिक्योर योरसेल्फ एंड जी ऑन अ मच हायर जॉब स्केल ना, ज्यादा उस पर जा सकते जी हो। ऑलरेडी बैकग्राउंड है, तो तुम्हें जी अच्छे लेवल पे बड़ी जगह पे काम करने में मसला नहीं है, राइट? ये हो इंशाल्लाह। तो बस, तो बिल्कुल उसको मसला थोड़ी है। परसू करना शुरू कर, अभी पढ़ाई शुरू कर दो अपनी। जी। और फैसल भाई, ये चीज एक लास्ट पूछनी थी कि आप लोग मतलब कल के दिन यानी सीजो वगैरह के कुछ कोर्सेज वगैरह लॉन्च करेंगे, मैनेजमेंट वगैरह की, या कुछ प्लान है? जो हमारे एडवांसमेंट ट्रैक्स है ना, उसमें साइबर डिफेंस एडवांसमेंट ट्रैक, ऑफेंसिव सिक्योरिटी एडवांस, साइबर डिफेंस एडवांसमेंट ट्रैक में सीसो का कोर्स है पूरा। ओके ठीक है, ओके ठीक है। अगर तुम्हें सारी चीजों के ऊपर काम आ जाए जो साइबर सिक्योरिटी में और जीआरसी में होती हैं, और तुम्हें जी जी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम आता है, यानी कि अगर तुमने डेवऑप्स का ट्रैक किया हुआ हो, और तुमने एडवांसमेंट ट्रैक किया हुआ हो, पब्लिक ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक किया हो, 5 अगर तुमने एडवांसमेंट ट्रैक्स कर लिए, तो तुम सीसो सीआईओ के काबिल हो जाते हो। अब ठीक है सीसो फैसल। सीआईओ बहुत डिफरेंट है जो पुराने जी जमाने जी में होता है। जी अब वो जी जी बहुत ज्यादा, यानी कि डेवऑप्स की बात होगी तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, तुम बोलोगे मैं तो पुराना आदमी हूँ, मुझे तो पता जी ही नहीं जी डेवऑप्स। ठीक है, जी जी कुबरनेटिस की बात करेंगे, सर्वरलेस सिस्टम्स की बात करेंगे, तो बोलोगे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जी जी तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर तुमने ये ठीक है 5 फैसल। कर ली, तो तुम ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाते हो एज ए सीआईओ के लिए। ये जज़ाकल्लाह खैर फैसल भाई, बारकल्लाह फिक। जी, आसिफ अली बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने बीएससी किया हुआ है मैथमेटिक्स में। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डेटा साइंस की तरफ आऊँ, आईटी की तरफ आऊँ। तो क्या मुझे मास्टर्स करनी पड़ेगी या बैचलर्स की तरफ मैं जाऊँ फिर से? बीएससी किया हुआ है, तुम्हें किसने कहा है कि बीएससी मैथ्स में किया हुआ है? बड़ा काम का सब्जेक्ट होता है बीएससी मैथ्स, ठीक है। जी हाँ सर, पर मुझे आईटी की तरफ जाना है, तो इस लिहाज से मैं क्या करूँ, या कंटिन्यू करूँ मैथमेटिक्स को ही? नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं करो, तुम इसके आगे मास्टर्स में एडमिशन लेना बाहर। अभी तुम जाके जी डेवऑप्स ट्रैक पढ़ो। तुम 3 से 6 महीने जी। में जॉब पे बैठे होगे, जब तुम जॉब पे बैठ जाओ, 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कमा रहे हो, फिर सोचो कि अब तुम्हें क्या करना। अभी मैं डेवऑप्स पे जाऊँ? मैथमेटिक्स के अंदर करने से तुम्हें फायदा सबसे बड़ा ये हुआ है कि तुम्हारा ऑलरेडी होराइजन बहुत बढ़ गया है, और तुम्हें जी प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है।
राइट? क्या जी हाँ, परसेंटेज मैथ्स में करने से? 75% है। हर कोई तो मास्टर्स बैचलर्स करने नहीं जाता ना मैथ्स में। जिसको मैथ्स से मोहब्बत होती है वो जाता है। तो तुम्हारा ऑलरेडी जी हाँ, एनालिटिकल माइंडसेट है, जी तुम्हें हाँ, कोडिंग मसला नहीं होगा। जब तुम कोडिंग सीखने बैठोगे तुम्हें कोई चक्कर, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। तुम जाओ बैठ के चले, तैयारी करो, डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक जाके बैठ पढ़ो। 3 से 6 महीने में जब तुम जॉब पे बैठ जाओ, फिर तुम सोचना कि अब मास्टर्स करने के लिए कहाँ जाना चाहिए। चलो, ठीक है थैंक यू सर। जी। रशीद। Yeah, Assalamu alaikum. This is Rashid from Bangladesh. So I have been following you from last 1 year almost, and your videos and all, like talks have been really inspirational. So my question is like I wanted to give some background, then I'll ask my question. My age is 32, and I have done my bachelor's in marketing and finance, which is BBA in Bangladesh, bachelor's in business administration, and later on I did my master's in development studies. And for last 8 years, I have been in different tracks. Like I started my career in marketing, then I switched to management consulting, and right now I am leading an non-profit organization in the role of executive director. So what I am planning is planning to move to Canada, and my immigration process has already started. Like I completed my IELTS and I got 8 in the general IELTS. Uh, and the next step, the ECA is done. But I understand the reality is that I might not be, and I absolutely am not a good fit in Canadian job market. So what should be my way forward from here? Your name is Mohammed Rashid, right? Yeah, Mohammed Rashid Mamun. Mohammed Rashid. Mohammed, so one of the things you have to understand is like you have done your last qualification was master's or what? Master's in development studies. Look, if you go to UK right now, if you apply, right? Yeah. You have a chance of almost 94% that you will get the visa. This is the stats coming from UK Home Office, not me. UK Home. If you go to like UK, like just type in UK Home Office student visa 2021, right? And you will see all the numbers here, right? And you will see some very interesting facts. Bangladesh is one of those countries which comes in top 5, right? Where like most of the people are coming from. I believe that they got the visa with the highest numbers. I'm just trying to find those numbers. Give me 1 minute. Sure, sir. Okay, so here you can see a couple of stats. Okay. Just give me 1 minute, please. Oh. So if you go here on the website, right, you will see that I believe that Bangladesh comes here somewhere. Yes. Additionally, Bangladeshi nationals increased from just to 10,000. Like there was an increase of 406%, right? I used to live in London and I lived there for almost roughly 10 years, right? Yeah. I can tell you something. Lots of Bangladeshi people are there from Sylhet and from Dhaka, right? Yeah. Are you from Sylhet or from Dhaka? I'm from Dhaka. Dhaka. So Yeah. lots of people. And you can see they are the 6th largest group that came to UK. And Okay. the stats, if I look at the stats, right? If I look at the stats, you can see this is coming from the Home Office website. If you apply now, there is a chance of securing a student visa in 3 weeks, 3 to 4 weeks time. That's the processing time, 94%. That's not me. That's coming from Home Office website. So applying for the UK for the Canadian immigration takes a long time. Yeah. Right?
So save your time. My recommendation to you would be uh, study. Now, that's one of the things. You have to apply for a student visa. That is something that you've decided, because you can apply for the immigrant, you can apply for the Canadian immigration, but depending on how much score you can get, right, for the experience class, is it like how many points do you have? I forgot, but it was like marginally I get the minimum number, yeah, because of the IELTS I get marginally selected. I I forgot know, the number. that will still take time, right? Yeah, yeah, it will take at least 1.5 years from now. So 1.5 years, depending on how the pandemic situation is going on, right? True, Now there is a war going on in Ukraine, and everything is upside down right now, right? Yeah, true. Fastest way to get a visa is a student visa. With your qualification and everything, start studying public blockchain advancement track or DevOps advancement track, right? And use those skills, because studying those tracks will enable you not only to, you can understand Urdu or not? Yeah, I understand Urdu. Yes. So that's one of the things that you know, if you study on those things, then you will get the full access in Urdu, because in Urdu, all the videos are ready. In English, you get 20, 25. In other languages, you get 25 hours per week, which is still a lot, 30 hours a week or something like that. Yeah. Right? Yes. So in Urdu, you will get everything. And the other thing is, like, if you apply for the student visa right now, you can potentially go in September. You're 30 years of age. This is a prime age. You can easily apply for a master's program, and we can assist you, because part of becoming, part of the advancement track is we assist you in getting the visa, right? So we can help you in going through the process, right? So this process will help you securing like a better job in UK faster. And study and do your master's for 9 months, because the master's normally it lasts for 9 to 10 months, right? They will give you the visa for 1.5 years or something like that, but you can complete it. And once you complete your studies, they will give you 2 years of work permit, right? And that will allow you to work immediately within the industry, because the degree will only give you the work permit. It won't get you the job. Yeah. You will get a job through the skills that you're learning here, and also through the skills of basically the experience as well. Okay. Sorry, not feeling well. I know. My last question, I have to go. So my recommendation to you would be, go and study DevOps advancement track or public blockchain advancement track. That will help you be fully prepared and be able to apply for all the jobs you want to do. Because by the time that you're doing your master's, you will be able to finish up the whole program, inshallah. Even before you go right now in September, if you can finish up, like, if you buy the annual program and you consume as much as you can, because the annual programs will give you everything, and you consume everything, you can secure a job before you even land there, inshallah, right? So my recommendation to you would be, that is a much faster path. Like in 1 year time, you'll be working on a work permit in UK, and after, like, within 2 years time, you can apply for the extension and everything, because they are making things easier for you in UK. In Canada, it will take longer. So even if you land to UK on a student visa, you will be able to save your time. What happens if you are waiting? You are marginally qualified because of 8 score, but what happens, like, if you are not selected because your points, or you lose some age points and stuff like that, then we'll be back to square one. Yes. Right? And then you have wasted all of your time just for waiting. So don't wait. But if you're selected, you say, and they say you are selected and you can come and apply, then come and apply, and then you can do it. Either way, UK or Canada doesn't make a big difference. The difference, one of the biggest differences is just like there are more jobs in UK as compared to in Canada. Oh, I didn't know that, sir. One thing, sir, sorry, is that I completed my PMP, like that. Does that
does this have any kind of advantage in the global market or the UK market? What do you mean by PMP? Oh, that from PMI, Project Management Institute, the project management professional. Yes. I mean, that will help you in terms of finding some project management jobs. So if you have the DevOps skills, you can work and say, Okay. I understand the DevOps, or I understand the public blockchain, or something like that. Okay. If you're developing applications, I'm a PMP certified as well. That certainly help you. Absolutely, yes. So in that case, sir, if I what I'm planning to enroll is in the DevOps advancement track. So whom is there any particular person to whom I reach out for this? There is Saba Amanat and Hafiz Mohsen Ali, both sitting here. They can help you in terms of. I got their number. Okay. Right. They can help you in that. I'm going to open the chat as well so that you guys can exchange some of those things. Right. Now, one of the things I wanted to inform is like there is a student here. I think he's from GIK, Ghulam Isa Khan University. Waleed Hanif. Are you here, Waleed Hanif? So this is for you. He said, sir, I'm a GIK graduate, electrical engineer, and a student of CAT and public blockchain. Sir, my question is that Al-Nafi is a software-focused company. But in the industry like IoT, robotics, and 3D printing or nanotechnology or orbital satellite, hardware also plays a very important role. We are working. There are new tracks coming up where you will be able to buy a kit for IoT, a kit for digital forensics, a kit for 3D printing. But for the nanotechnology part and all these other orbital science, and even for the kit for the robotics as well, for Jetson Nano. But for orbital satellite, I mean, the hardware, we're not teaching you the hardware. We're just teaching you like how to gather the data from the orbital satellite, and that's all big data, and how to work on it. Because nowadays, everything is moving towards application softwares. So if you understand software, if you understand applications, that is where you should be rather than focusing on all those things. So yes, there's a lot of focus on other things, other areas, but there are some limitations. There'll be a lot of things that we can teach you when you're doing your bachelor's and master's program, but we can't teach you all the hardware stuff remotely when we can't even touch the hardware. So Waleed Hanif, there's a lot of things that are coming up, but just to start, orbital satellite is something that we're already working on. And you will see there is we are planning to launch our own orbital satellite. The cost is around $100,000. It's going to be a small satellite of 6 by 6 cube, 6 inches by 6 inches cube in the lower Earth orbit. हम इसको रिलीज करेंगे और वो वहां जाएगी 1 साल के बाद, क्योंकि उसका $1 लाख का खर्चा है. अभी हम अपने सारे पैसे हमने आइडेंटिफाई कर दिए, कैसे करना है, क्या करना है, जिनसे बात करनी है, किस तरह से करना है. वी हैव डन ऑल ऑफ दोस थिंग्स. उसके लिए क्यू में लगना पड़ता है, हम क्यू में लग भी गए. 1 साल के बाद नंबर आएगा, $1 लाख देंगे, वो सैटेलाइट ऊपर भेज देंगे. दैट्स इट. सैटेलाइट खुद बना के उसका ऊपर पहुंचाने का भी खर्चा है $1 लाख. वी आर डूइंग दैट. उसके बाद फिर ऑर्बिटल सैटेलाइट है, क्योंकि वही सैटेलाइट सारे डेटा कलेक्ट कर रही होगी और तुम लोगों के पास आ रहा होगा, तुम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हो. सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. ठीक है. ये उज़ैफा कह रहे हैं, उज़ैफ कह रहे हैं, follow to move out of Middle East. My background is B electronics and wish to switch to the field of emerging technologies. उज़ैफ, आप जो B electronics किया हुआ है, जाओ DevOps पढ़ो, उसको क्या नाम है, जो तुम्हारे पास जो दूसरी चीज है, पब्लिक ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ो. ये तुम्हें ऑटोमेटिकली खुद मिडल ईस्ट से बाहर ले जाए. ओके. इसके अलावा किसी का अगर कोई और सवाल नहीं है? यस, हाजरा बोलिए. दिस इज द लास्ट एंड देन आई हैव टू गो अवे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम सलाम जी, बोले. Faisal bhai, my name is Behrouz. This is an account that I'm using. I didn't intend to use it. This is the name of my sister. Anyways, I hope you can hear me clearly. जी मुझे आवाज आ रही है. Faisal bhai, I am a social sciences graduate. I have some experience in public policy, project management basically, and I am thinking of studying business and public policy and law to go with it. And that is something I want to develop over time, but I have been looking at the Al-Nafi channel for around a year now.
I'm also trying to explore what I can do, because at the moment I'm unemployed. So that's some sort of concern that I have in the immediate term as well, and for the long term, because I don't see this as something that can get off the ground immediately. And I think it requires a lot of work. So I need to sort of be helped with finding the way. I have some interest in the blockchain technology, but I haven't read up on it in a lot of detail. I have sort of gone through some sessions of Al Nafi, some sessions of the Muslim the Muslim finance guru on. I have gone through some things, so but I'm still in the preliminary stages of understanding what it will take to sort of be good at the emerging technologies. So can you please sort of guide me or point me in the right direction? देखो, you have a lot of opportunities. तुम्हारे पास काफी सारी opportunities हैं. Social sciences is one of the things. I mean, you always need social scientists, right? I mean, especially in the Muslim communities, yes, they play a very integral part. However, because of the corruption and many other things, those things are not something that you will be able to make your career in, right? However, like, there is another thing that you can do. You can use this social sciences background and work within the project management side, work within the technology side. The path is not going to be easy for you. Because of the automation, many things are being replaced. Social scientists are being replaced by automation, automated tasks, many other things. My recommendation to you would be pursue DevOps advancement track, public blockchain advancement track. Yes, there is a learning curve in there. You have to learn the technologies, but learn the technologies in a way that you can work within organizations in terms of working within the project management office, in terms of working within leading the projects, or even like working in terms of leading some of these projects from the development aspects. There is no career for social scientists. Are you in Pakistan? कहाँ पर हो तुम? Where are you right now? Yes, Faisal bhai, I live in Pakistan, Lahore. So yeah, I mean, there is nothing else for you. I mean, you have been unemployed, and you will be unemployed for quite some time if you don't make any decisions. So मेरा मशवरा होगा तुम्हारे लिए, सबसे पहले तो तुम जो है ना ये nafe.com पे जाओ, ठीक है, और अपने लिए पैसे कमाने के जरिया एफिलिएट प्रोग्राम, इसमें तुम पैसे कमा सकते हो. तुम यानी कि लोगों को बोलोगे पढ़ाई के लिए, सबके लिए, ठीक है, जो रजिस्टर होगा उसका 8% तुम्हें मिलेगा, ठीक है. यहाँ ऑलमोस्ट रोजाना लोग आते हैं और वो इस पे काम करते हैं, और ना सिर्फ वो खुद पढ़ते हैं, लेकिन ये जो तुम पैसे कमा रहे होगे ना, पैसे बहुत आएंगे, बहुत अच्छे पैसे आएंगे, लेकिन वो पैसे जो है उससे तुम जो है ना सिर्फ वो करो कि तुम्हारे पास इतने हो कि तुम अपनी फीस का निकाल लो, और थोड़ा सा और पैसे ऊपर कमाने तो ठीक है, वो भी कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको वो नहीं बनाओ. यानी कि डोंट मेक इट कि यार यही मेरा कैरियर है. कैरियर तुम्हारा डिफरेंट है. कैरियर तुम्हें चेंज करना पड़ेगा. देखो, यहाँ आज की लड़कों की पेमेंट्स आएंगे, ये अब्दुल बासित जो बैठा हुआ है यहाँ पर, ये पाकिस्तान की पेमेंट्स है, ये आती है. जो ओवरसीज पेमेंट्स हैं वो अलग आती हैं, मतलब कि ना बड़ी बड़ी, किसी के $100 की जगह किसी ने $1200 पे लिया तो उसको $100 की पेमेंट मिली. इससे तुम अपना खर्चा निकाल सकते हो, बड़े अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हो. दैट कैन ओपन डोर्स फॉर यू, ठीक है. ये तुम्हारे साथ. So I should look into this to get formally or systematically involved. Is that what you are suggesting? मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि स्टडी DevOps का एडवांसमेंट ट्रैक. हाउ ओल्ड आर यू? Faisal bhai, I am 28, turning 29 in August. जवान आदमी हो यार, come on, you have a lot of time. ठीक है. So हंसी तुमने ऐसी की कि जैसे मैं बेचारा बहुत बूढ़ा हो गया हूँ. फैसल भाई क्या बात है, बस महसूस ऐसे ही होता है कुछ देर से. ठीक है. That's the thing. So ऐसा नहीं है. You have a lot of potential. अपने आप को रियलाइज करो. अगर तुम लास्ट तुम्हारी डिग्री किस में थी? फैसल भाई, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस. इट वाज अ डबल मेजर. पता नहीं क्यों तुमको सब नहीं बेसिक की तरह फॉलो करते हो कि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में जाके पढ़ लेता हूँ.
पता नहीं क्यों, who said to you to go and study history and politics? Faisal bhai, it's a long story. Let's not go down that road. सही है, बट एनीवे देखो, द पॉइंट इज के तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम अगर पढ़ लिया तुमने, ठीक है, व्हाटएवर द केस इज, पैसे जमा करो, काम करो। अगर तुम ये सब सही करते हो, अगर तुम यही सारा बैकग्राउंड लेकर पब्लिक ब्लॉकचेन डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ के यूके में जाते हो मास्टर्स करने के लिए, वहां मास्टर्स करते हो, ठीक है, तो तुम यार बहुत जबरदस्त पैसे कमा सकते हो। यू नो, तुम्हें मालूम है, तुम्हारा बैकग्राउंड जो है ना वो वहां पर तुम्हारे लिए डोर्स कर लेगा। बोलेंगे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ के आया, वो वहां पर ऐसे लोगों से उनको बात करने में मजा आता है, ठीक है। वो बोलेंगे भाई जो है ना, क्या नाम है तुम्हारा? बहरोज अली। बहरोज। वो बोलेंगे बहरोज जो है ना, वो बेसिकली यू नो व्हाट he did his political science. Oh, I did my majors in political science and history as well, so let's have a chat, let's have a lunch। वो तुम्हारे साथ बैठ के गप्पे शप्पे मारेंगे, तुम उनके साथ बैठ के गप्पे शप्पे मारो, ठीक है। लेकिन that will open doors for you, but तुम्हें जो काम मिलेगा वो ब्लॉकचेन में मिलेगा। वो देखो, इट डजंट मैटर तुमने किस में डिग्री की है, तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन एब्सोल्युटली डू इट। मगर उसका एक पाथवे है, तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तुम एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ते हो, तुम्हें उसमें टाइम लगाना पड़ेगा। जाओ एफिलिएट प्रोग्राम भी करो ताकि तुम्हारे पास एक सस्टेनेबल इनकम भी आए, ठीक है। इनकम आने से तुम्हारे जैसे पढ़ा लिखा आदमी अच्छी अच्छी पोस्टें लिखे, सब कुछ करे फेसबुक के ऊपर, और उसको इंग्लिश से उर्दू में, इंग्लिश से स्पेनिश में ट्रांसलेट करके स्पेनिश की यूनिवर्सिटीज पे उनको जाके बताए कि भाई ये कोर्स पढ़ के तुम लोग की जॉब हो जाएगी। वो आगे रजिस्टर होगा, तुम उसका 8% की उसकी फीस का लेके जा रहे होगे, $160, 2000 में अगर कोर्स रजिस्टर करता है। कैन यू इमेजिन, $160 तुमने कमाए, 10 भी अगर तुमने किए तो तुमने $1600 कमा लिए, ठीक है। तुम्हारा तो सारा खर्चा निकल आ गया पूरे महीने का, कोई मसला ही नहीं, टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन पैसे तुम जमा करो, तुम बाहर जाते हो तो तुम बहुत अच्छे पैसे कमा सकोगे। दिस इज नॉट द एंड बाय द वे, ठीक है ना बहरोज, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग। अगर तुमने थोड़ी मेहनत कर ली और अपने आप को अलाइन कर लिया, यू कैन बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। मैंने अपनी जिंदगी में पॉलिटिकल साइंस वाले, बॉटनी वाले, जूलॉजी वाले, क्रिप्टोजूलॉजिस्ट को भी देखा है, डिग्री करके क्रिप्टोजूलॉजी। मैं बात कर रहा, मैंने कहा किस में डिग्री है यार, क्या है क्रिप्टोजूलॉजी? मैंने कहा ये क्या होता है? कह रहे यू नो द स्टडी ऑफ लॉक नेस मॉन्स्टर एंड बिग फोर्ड। ओ मैंने कहा यस, कह रहा यस, दिस इज व्हाट आई डिड। यार दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग यार, आर दे रियली रियल और नॉट? कह रहा है कि भाई, वो कहता है कि यार वेल वो यूएस में था। मैंने कहा सो न्यू जर्सी के अंदर इज द जर्सी डेविल रियली रियल, हाफ मैन हाफ गोड? आई मीन व्हाट इज दैट, इज दैट नॉनसेंस और इज इट जस्ट रियल? सो कह रहा है कि भाई वो ना, से मैंने गप्पे शप्पे मारे, फिर मैंने से इंटरव्यू भी लिया। मैंने कहा ये बंदा पास है, इसको रख लो काम पे, ठीक है, ये काम करेगा। बिकॉज उसने मुझे कहा कि यार मेरा शौक था, मुझे शौक था करने का, मैंने कर लिया। लेकिन मैंने अपना सारी पढ़ाई, दूसरी जो पढ़ाई एक्सपीरियंस था साइबर सिक्योरिटी में, जीआरसी में, दूसरी चीजों में रखा, और बड़े अच्छे तरीके से बात करता था क्योंकि उसको बात करना आती थी, उसको एंगेज करना आता था। सो यू ऑलरेडी हैव दैट स्किल, ठीक है, तुम्हारे पास वो ऑलरेडी स्किल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हु यू आर। अगर तुम्हें वो पता चल गया, देखो अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं मुसलमानों को, मोमिनीन को, मैंने मोमिनीन की जाने जन्नत के एवज खरीद ली। ये नहीं कहा मुसलमान, मुसलमान तो बहुत सारे मिलेंगे। मुसलमान होता है जो बस, नवाज शरीफ भी मुसलमान है, जरदारी भी मुसलमान, वज़ीर नवाज मुसलमान है, मोमिन नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हें बहुत सारे लीडर मिलेंगे, इब्न सलमान तुम्हें मुसलमान बोलेगा मैं मुसलमान, लेकिन मोमिन नहीं। बिलीवर वो होता है कि जो अपने आप को सबमिट करता है अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला कहते हैं अपनी जान पहचानो, हु यू आर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई मीन रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ रिकॉग्नाइज करो अपने आप को, हु यू आर। यू हैव अ ग्रेट स्किल बट यू हैव टू बिल्ड अप योरसेल्फ। 3 to 6 months time you can build up yourself, you can go there। अगर तुम पैसे भी जमा करते हो, चले जाओ यूके में सितंबर में, तुम्हारा लेटर लिखता हूँ, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा मास्टर्स में, चले जाओगे तुम पढ़ने के लिए। सितंबर सेशन में जा सकते हो, फरवरी सेशन में जा सकते हो, पढ़ने जा सकते हो, कामयाब हो सकते हो। बट यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड देन इंशाल्लाह यू विल बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये मेरा मशवरा होगा तुम्हारी, ठीक है। By the email address available on Allafe, the email address associated with your name, can I get in touch on that email while I go through the affiliate program and the advancement track?
ये सारे लोग यहाँ पर हैं बैठे हुए। ये मोहसिन अली है, अब्दुल बासित है। अब्दुल बासित आज नजर नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। दे कैन हेल्प यू विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। जाके तुम पढ़ना शुरू करो। यू कैन टेक माय नंबर, आई कैन गिव यू माय नंबर। I may not be able to answer, like मैं इतना आराम से नहीं उठाता फोन। can have my number, okay? मोहम्मद कासिम कह रहे हैं कि भाई मैं यूएई में काम करता हूँ, ERP में काम करता हूँ, मोस्टली कवर्ड बाय आवर नेबर्स, आई वर्कड इन कंपनी SAP 65, ये वो बड़े पैसे हैं, फलाना फलाना फलाना, ये है ऐसा। भाई मुझे इसमें कुछ नहीं पता, हर चीज मैं नहीं कर सकता और हर चीज हमारे उसमें है भी नहीं, ठीक है। तो अगर तुम लोग करनी है जाओ करो, बिल्कुल यार। किसी को स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर ले, हर चीज हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल ऑफ यू टुमारो इंशाल्लाह, एंड वी विल टॉक फर्दर टुमारो इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।